So class, this is the last class of these type of questions. Now today I am finalizing all the logics related with electric field and potential in case of charged shells, concentric shells and the conductor with the cavity. And then I'll start the questions related with the charge distribution and surface charge density at each surface in the same problems in concentric shells and in conductor with cavity, the charge distribution and charge density at each surface charge density at each surface. So the next class will be of those type of questions. Today I am considering two questions. One is of conductor with the cavity and one is of concentric shells, and I want to discuss them side by side so that you can see the difference between the two solutions and the logics. For example, here you can see the three concentric shells. The shell number 1 is having charge Q at its surface. Shell number 2 is having 2Q charge, and shell number 3 is having minus 4Q charge, and there is an additional charge minus Q at the center of the shell also. And in this question we are having a conductor with the cavity of radius r. The spherical conductor is having radius 2r and the charge given to the conductor is 4Q. Now we will start our discussion, but before that let me conclude the results of all the discussions taken place in last 3 classes related with these questions. So all of you listen to the every point with concentration, focus it and write all the points in your copy. The first conclusion: for concentric shells, the induced charges, shells, not conductor with the cavity. For shells, induced charges are not to be considered while writing electric field and potential at any point. I have shown you that if you consider even the induced charges, they are finally cancelled in the expression of E and V. So this is the rule for shells, I repeat, not for the conductor with the cavity. Second conclusion is that for conductor with the cavity, this is important. First write induced charges at every surface and then finally write electric field and potential considering all the charges which are actual there and charges which are induced there on the surfaces. Third rule: in the region where net electric field is 0, potential difference in that region will be 0. I am not saying potential, I am saying potential difference in that region will be 0. That means the potential in that region will be constant. And that potential, that constant potential in that region will be equal to the potential of the surface. That region will be enclosed by some surface now. So potential of that surface will hold at every point of that region. Then if net electric field in a region is not 0 due to any reason, the potential difference will exist in that region. Potential difference will exist. I am not saying potential, I am saying potential difference will exist. If you move from one point to other, there will be change in potential between the 2 points. The next important point: to find electric field at any point. Just imagine a Gaussian surface through that point and find the net charge enclosed in that Gaussian surface.
Gaussian surface. And then how will you write electric field in one line? Electric field will be K, and I think now you remember K is 1 upon 4 pi epsilon naught. So electric field at that point will be K, and whatever net charge is enclosed in that Gaussian surface upon distance square, distance of that point from the center. Because spherical charge distribution, you know that the charge is considered to be concentrated at the center. And for the potential at that point, due to the charge which is enclosed in the Gaussian surface, that will be Q enclosed upon distance of that point from the center. But wait, this is not the final potential of that point. I just told you the potential of that point due to this charge. Which charge? The charge enclosed in the Gaussian surface will be this much. But total potential of that point will be potential due to all those charges which do not contribute to the field. That means which are present there but which are out of the Gaussian surface, they will also contribute to the potential. Like electric field, it will not happen that they are not coming in the expression of electric field. They will be present in the expression of potential. So potential due to all those charges which are out of Gaussian surface, they will also contribute to the field. And how will they contribute? They will contribute with the potential. Whatever is the potential at the surface, the same will be potential at that point also due to those charges which are not inside the Gaussian surface. And along with these charges, potential due to the charge which is enclosed by the Gaussian surface, that will be also there. So if you have written all the points, it's better you keep this page in front of you and the two questions we are going to discuss. You will go through these points and will answer. Pause the video, answer first and see if your answer is right or not. So this is the question: concentric shells and conductor with the cavity. Now we can take any 3 points like A, B and C, where we will find electric field and potential. Pause the video and first write yourself electric field at A. And if you have written, then let me discuss the electric field at A. Now what I said, to write electric field, just draw in your imagination, or you can draw with a pencil in your exam copy also, the Gaussian surface, and just check out what net charge is enclosed by the Gaussian surface. Now this green surface is Gaussian surface, right? Now check out what is the net charge enclosed in this Gaussian surface. Minus Q, plus Q, plus 2Q, minus 4Q. If you add these these four with sign, you will have minus 2Q as the net charge. So electric field at A is K minus 2Q upon and distance of this point from the center. So let me see what is the distance of this point from the center, and let me take this distance to be RA. If we take this point as A, then it is RA. So RA square. Clear? This is simple concept of writing electric field.
if the point is outside the shells, then it is easy to write electric field and potential, because you just have to find the net charge and you just have to consider all the charges to be concentrated at the center and write simple electric field due to point charge at distance r. Now if you have to write potential at A, then again if you are considering each charge, let me show you. If you are considering each charge, for example, due to minus q, kq upon Ra, due to plus q, kq upon Ra, due to 2q, k2q upon Ra, because every charge is considered to be at the center, and due to minus 4q, kq upon Ra. Now you can see that this 2q, this minus q and q will get cancelled, and here 2q and 4q, these expressions you subtract them and the result will be k minus 2q upon Ra. So it is better to have the conclusion, the points which can increase the speed of the solution. For example, here you got this conclusion that if the question is, if the point is outside the shell, then you just have to find the Gaussian surface and net charge enclosed by the Gaussian surface. And for electric field, K net charge enclosed upon Ra square, and potential K net charge upon Ra. Simple. So let me write this conclusion so that we can increase the speed of our calculation also, and we every time we don't have to write this expression, especially for mains and NEET, we need the speed also. So if you conclude it, then for a point outside the charge shell, अगर बाहर कोई point है ना, तो सोचना ही नहीं है तुमको, बस केवल नेट एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करो, नेट चार्ज अंदर फाइंड करो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो k नेट चार्ज अपॉन r स्क्वायर, और r क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, और v सीधे k नेट चार्ज अपॉन r, इट्स नॉट r स्क्वायर, इट्स r. ठीक, अब पॉइंट B पर पहुंचते हैं. B inside the two shells, this is the point. अब B पे आप सबसे पहला काम करो कि एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लो. So our green Gaussian surface will now be here. Gaussian surface, and we have to find electric field and potential at point B. Distance of point B from the center is RB. Distance of point B from the center, you take it as RB, while radius of the inner shell is R, the second shell is 2R, and the third shell is 4R. So, considering all the data, let me mark it as shell number 1, shell number 2 and shell number 3. So, electric field at B. रूल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते समय तो कोई चिंता ही नहीं है, बस केवल ये पता कर लो कि इनक्लोज्ड चार्ज कितने हैं. इनक्लोज्ड चार्ज इस ग्रीन सरफेस के अंदर जो बी पॉइंट है उसके अंदर क्या है, माइनस क्यू एंड दिस क्यू ऑन द शेल 1. सो इनक्लोज्ड चार्ज inside the
गॉसियन सरफेस इज 0। तो काम बहुत आसान हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इज 0। वाई? बिकॉज enclosed charge, net enclosed charge is 0। जैसे ही ये पता चला, दिस implies that पोटेंशियल एट B मस्ट बी कांस्टेंट। तो अब पोटेंशियल में ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए जो वेरिएबल हो, सारे टर्म्स कांस्टेंट होंगे। ये क्रॉस चेक करने का तरीका है कि पोटेंशियल हमने सही लिखा है या नहीं। तो अगर B पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल लिखते समय देखो हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। पोटेंशियल तो -4Q की वजह से भी होगा, 2Q की वजह से भी होगा, -Q की वजह से भी होगा और +Q की वजह से भी होगा। अगर -4Q की वजह से पोटेंशियल देखें तो कितना होगा? जो इस पूरे स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पर -Q की वजह से पोटेंशियल K -4Q अपॉन 4R। ये इस -4Q शेल के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल होगा ही होगा। तो जितना ये येलो लाइन्ड शेडेड रीजन है वो सब -4Q की पोटेंशियल से फिल्ड है। हर पॉइंट पर पोटेंशियल के -4Q अपॉन 4R तो है ही। क्यों? क्योंकि -4Q की वजह से इस सरफेस के अंदर कोई भी फील्ड नहीं होगी। तो जो चार्ज अपनी वजह से किसी रीजन में फील्ड 0 रखेगा वो अपने जोन में अपने पोटेंशियल को हर पॉइंट पर फिक्स कर देगा कि अब हर पॉइंट पर मेरी वजह से पोटेंशियल वही जो सरफेस पर है। तो इस येलो रीजन में ये जो पोटेंशियल V एट सरफेस 3 है ये कितना है? K -4Q अपॉन 4R। I will not simplify it so that we can easily recognize just looking at the expression that this is expression due to -4Q। तो ये इस येलो रीजन पर हम इसको यहाँ पे येलो रीजन बना देते हैं that this is potential at every point in the yellow shaded region। I want you to be clear in this concept so that within seconds you write the potential at a point due to spherical charge distribution of shell or due to conductor with the cavity। तो ये तो पक्का हो गया कि B पर इतना पोटेंशियल इसकी वजह से है। अब अगले चार्ज पर आ जाओ। ये पक्का हुआ कि येलो की वजह से B पर येलो के देखो येलो रीजन में पड़ रहा है येलो वाला पोटेंशियल होगा। अब 2Q की वजह से आ जाओ। इस गॉसियन सरफेस में 2Q इंक्लूड नहीं है ये, लेकिन फील्ड तो है यहाँ पर 2Q की वजह से। फील्ड तो आप नेट फील्ड निकालते हैं गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, लेकिन एक्सप्रेशन में 2Q नहीं आ रहा है क्योंकि वो गॉसियन सरफेस से बाहर है। ये बात ध्यान रखना, ये बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। गॉसियन सरफेस पे जो पॉइंट होता है उस पर फील्ड जो हम लिखते हैं गॉस लॉ की हेल्प से, that field is due to all the charges present in that space, but in the expression the charge enclosed by the surface that is only present। expression में नहीं आता बाकी कोई चार्ज। तो 2Q भी एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। तो वो कह रहा है कि भाई मैंने अपना दावा एक्सप्रेशन पे छोड़ दिया, 2Q कह रहा है, लेकिन जो मेरी सरफेस पर पोटेंशियल है मेरे सिग्नेचर के फॉर्म में मेरे अंदर के हर पॉइंट पर वो पोटेंशियल तो होगा ही होगा। तो देखो अब ये पिंक लाइंस वाला शेडेड रीजन कौन सा है? ये वो रीजन है जहाँ पर 2Q की वजह से कोई फील्ड नहीं है। 2Q की वजह से जो फील्ड है उसके एक्सप्रेशन में अब ये 2Q की वजह से फील्ड नहीं आ रही है।
लेकिन यह 2q की वजह से कोई फील्ड नहीं है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि चार्ज इनक्लोज्ड 2q में 2q गॉसियन सरफेस में इनक्लोज चार्ज नहीं है, तो 2q की वजह से यहाँ पर जो फील्ड है उसके एक्सप्रेशन में 2q नहीं है, लेकिन पोटेंशियल इसके हर पॉइंट पर 2q की वजह से वो ही, एक तो 2q की वजह से होगा और दूसरे उतना ही होगा जितना 2q की सरफेस पर है। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर रखनी है दिमाग में कि कई बार हम लोग जल्दी में ये बोलते हैं कि 2q की वजह से अंदर कोई फील्ड नहीं होगी। बेटा 2q की वजह से चार्ज, क्योंकि 2q इनक्लोज नहीं है, तो 2q की वजह से जो नेट फील्ड उस जगह पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें q भी है, -q भी है, q भी है, 2q भी है, -4q भी है, तो वो नेट चार्ज उस पॉइंट पर नहीं होगा, 2q उस नेट चार्ज में इंक्लोज्ड नहीं होगा। लेकिन कंडक्टर के अंदर फील्ड क्यों ज़ीरो होती है कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर? क्योंकि अगर फील्ड एग्जिस्ट करती है तो चार्ज भागेगा, और तब तक भागेगा जब तक फील्ड अंदर ज़ीरो ना हो जाए। लेकिन अगर स्पेस में रैंडमली चार्जेस बिखरे हुए हैं और गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करते हो, तो जो फील्ड किसी पॉइंट पर है वो सारे चार्जेस की वजह से, नेट चार्ज की वजह से होती है। लेकिन एक्सप्रेशन में केवल वही चार्जेस आते हैं जो इनक्लोज्ड हो रहे होते हैं। तो कंडक्टर का केस अलग है, इसलिए कंडक्टर के अंदर फील्ड ज़ीरो होती है। पर गॉसियन सरफेस में जो चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि उस चार्ज की वजह से फील्ड वहाँ पर नहीं होगी। ये बात क्लियर हो रही है कि कंडक्टर का केस डिफरेंट है, इसलिए कंडक्टर के अंदर फील्ड ज़ीरो हो जाती है। तो चलो अब देखते हैं कि 2q की वजह से कितनी फील्ड होगी, जो इस पिंक रीजन के अंदर हर पॉइंट पर होगी ही होगी। v एट द सरफेस ऑफ 2 होगा k द चार्ज अपॉन, और सेंटर से इस सरफेस की डिस्टेंस है 2r, तो इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो इतना है। तो येलो रीजन में हर पॉइंट पे ये पोटेंशियल होगा ही होगा। जो रीजन में पिंक लाइंस हैं उसके हर पॉइंट पे ये पोटेंशियल होगा ही होगा, और वो रीजन जो येलो और पिंक दोनों लाइंस रख रहा है उसके हर पॉइंट पर ये और ये दोनों पोटेंशियल तो मौजूद होंगे ही होंगे। इस तरीके से हम अगर अपने दिमाग में क्लियर कर लें तो फिर हमको पोटेंशियल लिखने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा किसी भी पॉइंट से। अब आ जाओ, 4q हो गया, 2q हो गया, q की वजह से अब देखो q से इस शेल से b बाहर है, तो अब ये कौन सा केस हो गया? आउटर पॉइंट ऑफ द शेल, यानी अब ये वैसा हो गया जैसा हमने पिछले केस में किया था जब a पे फील्ड निकाली थी। a पे फील्ड निकाली थी तो a चारों तीनों शेल्स से बाहर था। यहाँ पर बस इतना ध्यान करना है कि भाई b केवल -q पॉइंट और q शेल इससे बाहर है। तो अब पोटेंशियल बिल्कुल नॉर्मल, जैसे फील्ड बिल्कुल नॉर्मल लिखी जानी है। तो सबसे पहले E at B इज इक्वल टू 0 ड्यू टू इनक्लोज चार्ज हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज -q और +q 0 हो रहा था, तो कोई चार्ज इनक्लोज नहीं था। लेकिन जब हम VB लिखेंगे तो देखो, और ध्यान रखना कि इसमें कोई भी टर्म ऐसा नहीं आना चाहिए जो वेरिएबल हो, क्योंकि फील्ड 0 है। तो पोटेंशियल तो एग्जिस्ट करेगा पर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी पोटेंशियल डिस्टेंस पर के साथ वेरी नहीं करेगा। तो चलो बी पे अब पोटेंशियल फाइनली लिखते हैं। बी पे V3
होना ही होना है, V2 होना ही होना है। अब Q की वजह से B पर पोटेंशियल क्या होगा? Q की वजह से होगा, क्योंकि शेल से बाहर है, तो K Q तो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान के लिखेंगे, RB, फिर प्लस, अब माइनस Q की वजह से K माइनस Q अपॉन सेंटर से B की डिस्टेंस RB। अब तुम देखो कि अपने आप ये दो टर्म्स चले गए, ये दो टर्म्स अपने आप चले गए, यानी ये वेरिएबल जो R था वो अपने आप निकल गया एक्सप्रेशन से, क्योंकि ये डिस्टेंस के साथ इस पूरी रीजन में बदलता, वो अपने आप चला गया, क्योंकि फील्ड ज़ीरो है तो पोटेंशियल में कोई एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होगा जो वेरिएबल हो। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? इट्स V3 दैट इज K माइनस 4Q अपॉन 4R प्लस K 2Q अपॉन 2R। ये हो गया V एट B। अब क्या हम कुछ अपने लिए ट्रिक यहाँ से डेवलप कर सकते हैं कि हम देखते ही समझ जाएं आगे और हमको इतना एक्सप्रेशन कैलकुलेशन ना करना पड़े? तो चलो साथ साथ ट्रिक डेवलप करते हैं। एक तो ये कि B पर हम तुरंत एक सर्कल इमेजिन करेंगे, स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करेंगे, गॉसियन सरफेस, और देखेंगे कि नेट चार्ज क्या है। अगर नेट चार्ज कुछ नहीं है तो फील्ड ज़ीरो और फील्ड ज़ीरो, तो जो नेट चार्ज कुछ नहीं है वो B के पोटेंशियल में भी तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये देखो। तो अगर नेट चार्ज इनक्लोज ज़ीरो है तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। तो क्या कंक्लूज़न निकलेगा कि जो 2 की सरफेस पर है प्लस जो 3 की सरफेस पर है वो ही पोटेंशियल B पर होगा। प्रैक्टिस करोगे तो ये कैलकुलेशन ओरली माइंड में होगा और आपको ये एक्सप्रेशंस लिखकर ये जो टाइम कंज्यूम हुआ ये नहीं करना पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट C कहाँ है? इस शेल के अंदर। चलो इस पे देखते हैं। C पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है? गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेनी है। तो अगर C पे पाना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, तो अब ये तो तीनों शेल के अंदर है। सबसे पहले हमको देखना है कि इसका गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस C से पास होगा वो कितना चार्ज इनक्लोज करता है। अब गॉसियन सरफेस, ग्रीन सरफेस जो C से पास हो रही है, वो ग्रीन सरफेस अब शिफ्ट होकर अंदर आ गई, जहाँ पर अब हमको फील्ड कैलकुलेट करनी है। और देखो सिर्फ माइनस Q, Q4Q, Q2Q और माइनस 4Q, ऑल दीज 3 charges are out of the Gaussian surface and you are left with minus Q only. So what does it mean, children? This implies that field inside this surface is not zero. Are you getting this point? Field at this point, that was the point B. Field at this point is zero, but field inside this shell number 1 is not zero. इतने सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि दिस लेक्चर नंबर 51 is there to explain you the complete course of electrostatics, and still we are left with equipotential surface with the charge densities at different surface. वो सब अभी बचा हुआ है जो लास्ट क्लास का टॉपिक है, लेकिन उसमें भी 2-3 लेक्चर्स अभी लगेंगे हमको। आपको इस
इतना काबिल बनाने में कि न्यूमेरिकल्स पर आप बिल्कुल डरो नहीं। तो आज एक ही क्वेश्चन को मैं इतना धीमे धीमे एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा कि अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट मैं क्लास में लूँ, आई होप कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल भी दिक्कत महसूस न करें अगर आपने ठीक से क्लासेस अटेंड करी हैं तो सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब क्या कि अब पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है। तो सी पे जब पोटेंशियल लिखेंगे, ध्यान दो, सी पे जब पोटेंशियल लिखेंगे तो येलो वाला पोटेंशियल होगा, पिंक वाला पोटेंशियल होगा और साथ में एक टर्म रहेगा जिसमें वेरिएबल आर होगा, क्योंकि अब इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि चार्ज एट द सेंटर इज प्रोड्यूसिंग फील्ड इनसाइड द shell 1. So that is why I every time just remind you that never say that field inside the conductor is zero. कंडक्टर के अंदर फील्ड हो सकती है, लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर फील्ड नहीं हो सकती, क्योंकि चार्जेस भागेंगे कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, वो फ्री है कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर भागने को। तो जब तक वहाँ फील्ड रहेगी वो भागेंगे, और तब तक भागेंगे जब तक वो सब के सब बाहर की सरफेस पर ना चले जाएं। और बाहर की सरफेस पर क्यों चले जाएंगे? क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करके मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाना चाहते हैं। तो अगर अंदर कैविटी है भी तो वो अंदर की सरफेस पे जाना प्रेफर नहीं करते हैं जब तक अंदर सेंटर पे कोई चार्ज ना रखा हो, तब तो फोर्स होकर वहाँ जाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ कैविटी है, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्जेस भागेंगे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करते हुए सिर्फ बाहर वाले सरफेस पर अपीयर होंगे, बिकॉज दे वांट टू बी एज फार फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल। तो अंदर वाली छोटी सरफेस पर आने पर वो उनका मकसद पूरा नहीं होता है। तो चलो अब सी पर लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, और बस केवल वो चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, माइनस क्यू अपॉन, और इस डिस्टेंस को हमने आर सी माना है तो आर सी स्क्वायर, फिनिश। अब फील्ड ज़ीरो नहीं है, और नहीं है तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन ये येलो रीजन और पिंक रीजन, वो दोनों रीजन यहाँ पड़ते हैं, यानी इन दोनों की जो ज़मींदारी है वो इस रीजन में तो है। तो इन दोनों का जो शासन है वो सी वाले ऑब्जर्वर को एक्सेप्ट करना है। तो हम लिखेंगे के माइनस 4q अपॉन 4r विच इज़ V3। फिर हम लिखेंगे के 2q अपॉन 2r विच इज़ द पिंक रीजन एंड पोटेंशियल एट सेकेंड सरफेस। इसके बाद अभी बात पूरी नहीं हुई है, अब इस Q चार्ज का भी शासन इस C को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Q की वजह से भी अंदर फील्ड नहीं है, ये फील्ड तो केवल माइनस Q की वजह से है ना। तो जिन चार्जेस की वजह से फील्ड नहीं होगी उनका कांस्टेंट पोटेंशियल राज तो स्थापित हो ही जाना है। तो इस प्लस Q की वजह से भी इस रीजन में इसका अपना एक जोन स्टैब्लिश हो जाना है, कांस्टेंट पोटेंशियल जोन। तो अब देखो ये कांस्टेंट ब्लू शेड जो है ये माइनस Q की वजह से, शेल 1 की वजह से कांस्टेंट पोटेंशियल जोन है। तो अब हमको ये वाला जोन भी ऐड करना है यहाँ पर, which is V1 and this value is KQ upon R. So just think of it that the point C is not facing any field due to Q, 4Q and minus, due to Q, 2Q and minus 4Q. So point C has to accept the potential of the surface Q, potential of the surface 2Q
एंड पोटेंशियल ऑफ द सरफेस 4q। जिसकी फील्ड नहीं उसका पोटेंशियल c को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट ये जो c है इसमें देखो रेड लाइंस वाला जोन भी है, येलो लाइंस वाला जोन भी है और ब्लू लाइंस वाला जोन भी है। तो इस रीजन में जो शेल नंबर 1 के अंदर है उस रीजन में ड्यू टू -4q, ड्यू टू 2q, ड्यू टू q, तीनों की वजह से कांस्टेंट पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा जो उनकी अपनी सरफेसेस पर है। यानी जो C पॉइंट है उसके पास V3 भी होगा, V2 भी होगा और V1 भी होगा और इसके अलावा उसके पास पोटेंशियल वेरिएबल वैल्यू भी होगी जो -q की वजह से है। तो V3 लिख लिया, V2 लिख लिया और अब V1 लिख लेते हैं KQ/R। कैलकुलेशन बेटा देखते जाना, मुझसे कहीं जल्दी में गलती ना हो जाए, तो कैलकुलेशन आप मैच करते जाना, हमेशा मेरे साथ कैलकुलेशन करो। और अब -q की वजह से ये जो चौथा टर्म है ना V, ये -q की वजह से जो है इसको लिख देते हैं यहाँ पर ड्यू टू -q एट द सेंटर। इसके लिए ये पॉइंट चार्ज से दूर RC डिस्टेंस पर नॉर्मल वेरिएबल पोटेंशियल K -q/RC। और ये ध्यान रख रहे हो बेटा कि पोटेंशियल में हम बराबर साइन के साथ चार्ज रख रहे हैं। मैं फिर से याद दिला दूं, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ चार्ज विद साइन। एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड here is radially either outward or inward, and in case of potential or in case of electric field we have to move either parallel or anti-parallel to the field। तो दो फील्ड के बीच की एंगल कहीं पे भी नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग साइन का यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड सही आ जा रही है, क्योंकि डायरेक्शन either the two fields are parallel to each other, जैसे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उनकी वजह से फील्ड पैरेलल टू ईच अदर रेडियली आउटवर्ड होगी, और अगर माइनस और प्लस दो चार्जेस हैं तो उनकी वजह से फील्ड रेडियली, एक की वजह से आउटवर्ड, एक की वजह से इनवर्ड, तो दोनों की वजह से फील्ड एंटी पैरेलल है, पर एटलीस्ट उनके बीच एंगल आइदर 0 या 180 है और कोई एंगल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर हम ये फैसिलिटेट कर पा रहे हैं कि चार्ज को साइन के साथ रखेंगे और सब आंसर सही आएगा। लेकिन जहाँ पे चार्ज की वजह से फील्ड्स किसी एंगल पर होंगी, वहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ करेंगे और तब नेट फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से चार्ज को साइन के साथ रखकर नेट फील्ड कैलकुलेट नहीं होगी। कहाँ पर? जहाँ पर चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर एट सम एंगल, दे आर नॉट आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, बट इफ दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, several fields are there and they are either parallel or anti-parallel, no other angle between them, then you can calculate net electric field just keeping the charge with sign and your net field will come correct. So now A, B and C we have completed the discussion. I hope कि shell की fields और potential का case clear हो गया होगा. I'll suggest कि अगर पहली बार में ना क्लियर हो तो आप पूरे क्लास को दोबारा से देखो। और अब हम लोग चलते हैं इसी के पैरेलल क्वेश्चन पर, विच इज़ कंडक्टर विद द कैविटी। नाउ इन दिस केस वेयर कंडक्टर विद द कैविटी इज कंसिडर्ड, I have taken again the 3 points A, B and C and let me start with the discussion of electric field at A. तो अब क्योंकि डिस्कशन बहुत लंबा हम लोग शेल्स के लिए कर चुके हैं, तो आई होप कि आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। ए पर आपको क्या इमेजिन करना है, फटाफट आपको एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है और देखना है कि नेट फील्ड कितनी, नेट चार्ज इनक्लोज्ड कितना है। तो देखते हैं कि कितना नेट चार्ज है, -q एंड देन 4q। क्या हम अब नेट चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं?
या हम कुछ छोड़ रहे हैं? ध्यान आया बेटा? दिस इज कंडक्टर विद कैविटी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें चार्ज इंड्यूस्ड भी कंसीडर करने हैं। चार्ज इंड्यूस्ड अगर कंसीडर करना है तो ये माइनस क्यू है, तो अंदर इसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। जो प्लस क्यू चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ वो क्यों इंड्यूस हुआ? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिपेल होकर बाहर चले गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए? इक्वल टू चार्ज माइनस क्यू। वो माइनस क्यू कहाँ पहुँचा? सरफेस पर। तो 4q के साथ बाहर की सरफेस पर अब माइनस क्यू भी ऐड हो गया। तो बाहर की सरफेस पर न्यूट्रल चार्ज हो गया माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और बाहर की सरफेस पर बचा केवल 3q। तो अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बी अवेयर दैट इफ़ यू आर डीलिंग विद द कंडक्टर एंड कैविटी, then you have to consider the induced charges. Now actually we can take it as the case of 3 shells. Minus q, q, a shell, minus q, a shell with charge plus q and radius r, and the shell with charge 3q and radius 2r. Anyway, write field at A. Now field at A will be due to charge enclosed. कितना चार्ज enclosed है देखो, प्लस क्यू माइनस क्यू गए, सिर्फ 3q बच रहा है। तो यहाँ आएगा 3q by and take this distance as RA. So you will have RA square. माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे प्लस क्यू इंड्यूस हुआ। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए देवर ऑफ माइनस क्यू चार्ज, सो द सरफेस विल हैव 4q minus q, that is 3q charge, net charge at the outer surface. And if you consider what is the charge enclosed, then you can take net charge enclosed is 3q only. यहाँ पर एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। जो चार्ज कैविटी के अंदर है, इलेक्ट्रिक शील्डिंग हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं पिछले 2 क्लासेस में से किसी क्लास में। तो जो चार्ज शेल के अंदर है, तुम देखो वो यहाँ नहीं आया, मतलब शील्ड, ये जो येलो रीजन है ना, ये वो रीजन है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रह ही नहीं सकती। तो फील्ड अंदर है, फील्ड बाहर है, लेकिन ये वो रीजन है जहाँ नो मैन्स जोन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इन दोनों चार्जेस का इंटरैक्शन बाहर कन्वे कैसे होगा? तो अब हमको क्या एक ट्रिक मिली कि अगर कंडक्टर विद कैविटी की वजह से फील्ड लिखनी है हमको, तो पहले हम क्या करेंगे, इंड्यूस चार्जेस कंसीडर करके और देख लेंगे कि बाहर की सरफेस पर कितना चार्ज फाइनली अब रिजाइड कर रहा है आफ्टर दी इंड्यूस चार्जेस। और फिर हम सीधे क्या लिखेंगे, सीधे बाहर वाली सरफेस के चार्ज की वजह से फील्ड लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अंदर वाले चार्ज का फील्ड बाहर कम्युनिकेट नहीं होगा। तो जो भी बाहर की सरफेस पर चार्ज है वो ही यहाँ आ जाएगा। तो इसको भी हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। सो हैव यू नोटेड डाउन द पॉइंट दैट फील्ड ड्यू टू कंडक्टर विथ कैविटी at any point outside the cavity will be due to charge at outer surface only. Field due to conductor with cavity at any point outside the conductor, add it, will be due to charge at outer surface only. Why? Because inner charges means the charges inside the cavity. Inner charges will not have any field outside the conductor due to electric shielding. तो अब जैसे ही कंडक्टर विद द कैविटी का केस आए और क्वेश्चन किसी बाहर के पॉइंट पर हो, तो क्या हमको चार्जेस को
इंड्यूस चार्जेस को कंसीडर करके ये पता कर लेना है बस कि बाहर की सरफेस पर टोटल कितना चार्ज अब बचा आफ्टर द इंड्यूस्ड चार्ज कंसीडरेशन. And once we got that, the electric field at any point outside the conductor will be just the q at the outer surface upon distance square, because this charge at the outer surface will be taken as the charge at the center. It will behave as if it is concentrated at the center. Up potential at A. सेम लॉजिक, बाहर के पॉइंट पर सेम लॉजिक, के चार्ज एट द आउटर सरफेस अपॉन आर ए, क्योंकि जो चार्जेस फील्ड बाहर पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं वो अपनी फील्ड में जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं वो भी तो बाहर नहीं होगा. दिस इज केस एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द केस ऑफ द शेल्स. यहाँ पे ये नो मैन जोन बन जा रहा है. जो चार्ज कंडक्टर जो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है, कोई फील्ड का कम्युनिकेशन इस कंडक्टिंग मटेरियल के बाहर नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है. बाहर के चार्जेस का कम्युनिकेशन अंदर नहीं है, अंदर के चार्जेस का कम्युनिकेशन बाहर नहीं है. तो अंदर के चार्जेस का ना बाहर पोटेंशियल होगा ना फील्ड होगा. बाहर सिर्फ बाहर के चार्जेस का ही पोटेंशियल भी होगा और फील्ड भी होगी. तो क्या हमने बहुत तेज़ी से V और E लिखना सीख लिया A पर? इस डिस्कशन के बाद अब क्या ये हमको याद रहेगा कि हमको कोई कैलकुलेशन ना करनी पड़े, एक्सप्रेशंस ना लिखने पड़े, फटाफट चार्ज इंड्यूस किया, पता किया बाहर की सरफेस पर कितना चार्ज है और बाहर की सरफेस का चार्ज और बाहर की फील्ड, बाहर की सरफेस का चार्ज और बाहर का पोटेंशियल, कोई रिश्ता नहीं अंदर के चार्जेस से. ठीक, अब चलो चलते हैं पॉइंट बी पर. अब बी पर अगर आपको पोटेंशियल और फील्ड लिखनी है तो कुछ तो सोचना ही नहीं है, ये तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज सिंपली ज़ीरो. इफ़ यू हैव टू राइट फील्ड एट बी देन it is zero, straight away zero, because it is the point in the conducting material. And if field in the conducting material, that is this region, yellow region, if the field is zero there, then potential at this point will be constant and it will be only the potential due to charge at the outer surface. So let me once again write, it is minus q, therefore here it will be plus q, and induced charge minus q, so at the outer surface net charge will remain 3q only. So field at B is 0 and potential at B is due to the outer surface only. So it will be K 3q upon, and let me take this distance to be RB. और किसी का मन हो तो वो Q और माइनस Q की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे ऐड करके देख सकता है. KQ अपॉन RB माइनस KQ अपॉन RB, दे विल गेट कैंसल्ड. सो B पे लिखना बहुत आसान था. ये पूरा कांस्टेंट पोटेंशियल जोन है. और अब आ जाओ पॉइंट C पर. लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C इज RC. Now potential field at C. To find field at C, we have to draw the Gaussian surface. So for point C, Gaussian surface is here and electric field inside this Gaussian surface at the Gaussian surface is not zero, because the Gaussian surface is enclosing minus Q charge. So electric field inside the conducting material is certainly zero, but electric field inside the cavity is not zero, because inside the cavity minus Q is producing electric field of its own. So minus Q will have electric field at point C. K charge enclosed in the cavity, this Gaussian surface is only minus Q.
So the field at C will be K, the charge enclosed, upon RC square. And since field is not zero here, so potential will also be not zero here. So potential at C will be, due to charge minus Q, the potential will be K minus Q RC. And potential will also be due to Q. That will be plus Q. K Q upon R. And potential due to 3Q will also be there. That will be K 3Q upon 2R. Because this whole region is constant potential zone for 3Q. This whole region is constant potential zone for Q. And this region is variable potential zone for due to minus Q. So visualize it. This blue line zone is constant potential zone due to 3Q, and this violet line zone is constant potential zone due to Q. If you add them, 3Q and Q, then it is 4Q, but distance is different. So in case of conductor with cavity, you have to consider first the induced charges, and then only you will write E and V. So let me write the potential at C. Potential at C will be due to V due to 3Q plus potential due to Q plus potential due to minus Q. Potential due to 3Q, constant potential, जो surface पे वही, it will be K 3Q upon surface का radius है 2R, तो 2R. Potential due to Q, K Q upon, अब ये पर्पल जोन, Q की सरफेस पर जो पोटेंशियल, वही पोटेंशियल इस पूरे रीजन में, तो कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर. फिर ड्यू टू माइनस क्यू, के माइनस क्यू अपॉन, और ये वेरिएबल रीजन होगा. फील्ड अगर ज़ीरो नहीं है तो एक टर्म यहाँ पर वेरिएबल ज़रूर आएगा जिससे कि पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, एंड दैट इज़ के माइनस क्यू अपॉन आर सी. So this is potential at C. So now go through all the two cases side by side. I am giving you the whole discussion and the notes so that you can copy each point and all the diagrams, and you can get your concepts crystal clear. So take today's notes. This is the conclusion. With which we started the class. With the question, then we started with the questions. So this is the question of the shells. Note down the diagrams and the solution, and side by side the question of the conductor with the cavity. Now potential at point B in the case of shell.
and field at point B. And side by side, the case of conductor with the cavity, potential at point B as well as at point C. And this is case where potential and electric field at point C we calculated in the case of concentric shell. So copy the diagram, pause the video and write all the points necessary. So next class we will have the charge distributions and charge densities at each surface of the shells. Well beta, there is a correction also. I have written potential at B as K3Q upon RB. Well, potential at B will be due to charge at the potential at the outer surface, that is K3Q upon 2R. So just correct this expression, right? Potential at B will be whatever is the potential at the outer surface of the conductor, because field here is 0.